Hello everyone, good evening, Ram Ram सभी को. Welcome to my channel Tech Spark with Ria. We are about to begin our .NET series where you will learn everything step by step from basics to advanced level in the easiest and the most practical way. Are you a beginner guys? No worries, we will start from the scratch. And if you are preparing for your job interviews, I will cover key concept and important questions that are frequently asked in the companies. And also, if you want to enhance your skills, this is the right platform for you guys. This channel is your one-step guide to mastering the .NET skills like C Sharp, MVC, Web API, and so on. All are covered in very simple and a clear language. So let's start learning together and become the .NET experts. So please guys subscribe now and turn on the notification so that you can never miss a video. So firstly, we will explore about the .NET topics over here, starting with C Sharp from basics to advanced level, where we will cover variables, OOPs, link, delegates, asynchronous programming, and solid principles to build a strong foundation in it. Next, we will move to the MVC, where you will learn about the controllers, views, models, routing, and also know about the CRUD operations. Then we will explore about web APIs, focusing on the REST API and the CRUD operation for building the web services. After that, we will cover entity framework, including the three approach and the relationships in it. And we will also dive into SQL, learning about the queries, joins, views, and the store procedure for the database management. Additionally, we will touch on JavaScript basics and the important questions related to your interviews to help you in your technical discussion as well. Lastly, we will focus on the interview preparation, which cover all your key concepts in C Sharp, SQL, MVC, Web API, JavaScript, and Entity Framework to help you and crack your job interviews. So we will start with C Sharp, covering all the topics from basic to advanced level step by step. Here are the key topics we will learn in C Sharp. Firstly, start with Introduction to .NET Framework and .NET Core. Then move to console basics, variable, constant, data type, typecasting and conversion. Know about the arrays and operators, jumping statements, classes, methods. Then move to the OOPS concept, interfaces and abstract class, जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है. Then move to the method overloading, overriding, overhiding, and then cover the topics related to properties and object initializer, memory management, extension method. ये भी काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है. देन कलेक्शंस भी कवर करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग्स, डेलीगेट्स, serialization, multi-threading and asynchronous programming, solid principle and design patterns पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है. एंड लास्ट थिंग मैं जो आपको प्रोवाइड करूँगी वो सी शार्प के डिफरेंसेस होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से. तो वो मैं आपको एक ही वीडियो में सारे एक साथ प्रोवाइड करूँगी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे .NET फ्रेमवर्क के बारे में कि .NET फ्रेमवर्क होता क्या है. So .NET Framework is a window-based development platform for building the desktop, web and the database application. So .NET Framework एक powerful development platform है जो desktop, web-based and database application बनाने के लिए Microsoft ने develop किया है. ये सिर्फ Windows पर ही चलता है. ओके. और developers के लिए कोड लिखना, मैनेज करना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इजी बनाने में .NET फ्रेमवर्क हेल्प करता है. देन इट यूजेस कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फॉर द कोड एग्जीक्यूशन एंड द मेमोरी मैनेजमेंट. मीन्स कि ये कोड को एग्जीक्यूट करना और मेमोरी को मैनेज करना और ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन को हैंडल करने का काम ये CLR करता है. ठीक है. देन ये प्रोवाइड करता है मल्टीपल सपोर्ट इन
multiple programming languages like C Sharp, VB.NET and C++ with a rich base class library as well. मतलब ये C Sharp, VB.NEट जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। एंड रिच क्लास लाइब्रेरी का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारी प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी होती है जो ये अपने को प्रोवाइड करता है। और ये अपने को प्रोवाइड क्या करता है, और सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन विद एसक्यूएल सर्वर। इसका मतलब ये है कि डाटाबेस के साथ जब स्मूथ कम्युनिकेशन करना होता है तो उसमें भी डॉटनेट फ्रेमवर्क काफ़ी इजीली वे में अपनी हेल्प करता है। तो जो करंट वर्जन और आप कह सकते हो जो लेटेस्ट वर्जन डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो यूज़ किया जा रहा है वो है 4.8.1। बट करंटली मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए अ, आज यूज़ करते हैं जो वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर या डॉट नेट का 6, 7 या 8 वर्जन को रेकमेंड किया जाता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क। सबसे पहले क्या कौन सी एडवांटेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये कोड को रीयूजेबल एंड उसके मॉड्यूलर डिजाइन को सपोर्ट करते हैं। देन आते हैं सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है इसमें। देन आता है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी में VCL आता है, बेस क्लास लाइब्रेरी एंड एडियो डॉट नेट। बेस क्लास लाइब्रेरी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, जैसे कि इसमें कुछ प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिच लाइब्रेरी। एंड एडियो डॉट नेट यूज़ किया जाता है जब अपने को डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनानी होती है। एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन विद एसक्यूएल सर्वर। तो ये डाटाबेस के साथ स्मूथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी अपनी हेल्प करता है। देन आता है गार्बेज कलेक्शन। तो कोई भी ऑटोमेटिकली जो भी इसमें अनयूज मेमोरी रहती है इसकी स्पेस को ये फ्री करता है और इसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। एंड लास्ट वन इज ये प्रोवाइड करता है अपने को मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, सो दैट इसमें आप अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ जैसे कि C Sharp, VB.NET के साथ इजिली वर्क कर सकते हैं। देन आता है डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर एक लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है जो अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये आर्किटेक्चर मल्टीपल लेयर में डिवाइड होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये 7 लेयर्स में डिवाइड है जो एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है लैंग्वेजेस। तो ये सपोर्ट करता है आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम कर सकते हैं। देन आता है CLS जो आपकी कंपैटिबिलिटी बनाता है सो दैट आप स्मूथली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इजिली काम कर सके। देन आता है एप्लीकेशन। तो आप अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देन एडियो डॉट नेट जो आपका डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने में काम करता है। देन आता है बेस क्लास लाइब्रेरी। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं जिसको आप यूज करते हैं अपने कोड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो नेक्स्ट थिंग है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो बेसिकली जो और आप कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो CLR है, क्योंकि इसकी हेल्प से अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। और ये सारा कुछ किस पे रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, सो ये विंडोज को सपोर्ट करता है। वो नेक्स्ट इसमें इसका फ्लो बताया गया है, तो वो देखते हैं कैसे है। फर्स्टली डेवलपर राइट द कोड इन C Sharp, VB.NET एंड VC++। मतलब डेवलपर इन किसी भी इनमें से किसी भी लैंग्वेज में इजिली कोड लिख सकता है। नेक्स्ट थिंग इज CLS इंश्योर द कोड कैन वर्क अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो CLS की हेल्प से ये पता लगता है कि लाइक ये अपने को हेल्प करता है कि आप किसी भी लैंग्वेजेस में कोड इसमें लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस एक दूसरे के कोड को इजिली वे में समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। देन आता है एप्लीकेशन टाइप इज चूजन। तो डेवलपर ये डिसाइड करता है कि उसको किस टाइप की एप्लीकेशन अभी चाहिए। तो वो किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकता है, जैसे विंडो बेस्ड, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या ASP.NET एप्लीकेशन, एनीथिंग, कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है। देन आता है AD.NET। AD.NEट इज यूज्ड इफ डाटाबेस ऑपरेशन आर नीडेड। अगर डाटाबेस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो AD.NEट का यूज करके एसक्यूएल सर्वर या किसी भी डाटाबेस से इजिली कनेक्ट किया जा सकता है। देन आता है बेस क्लास लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर द इजियर कोडिंग। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस का यूज करके कोडिंग इजी हो जाती है। जैसे कि ये प्रोवाइड करता है फाइल हैंडलिंग, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के लिए। अगर अपने को कुछ भी यूज करना रहता है तो आप बेस क्लास लाइब्रेरी की हेल्प से यूज कर सकते हैं अपने कोड में, और इससे अपनी कोडिंग इजी हो जाती है। देन आता है CLR compiles and execute the code, managing the memory, security and the exception।
तो कॉमन लैंग्वेजेस रन टाइम बेसिकली क्या करता है, कोड को कंपाइल करता है और उसको एग्जीक्यूट और मैनेज करने में हेल्प करता है, और ये एक्सेप्शन को भी हैंडल करता है और अपने को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। देन जो अपनी एप्लीकेशन है दैट रन्स ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लास्ट स्टेप में जो अपनी एप्लीकेशन है वो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्मूथली रन हो जाती है। नेक्स्ट है CLI एंड इट्स कंपोनेंट। तो CLI क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक स्टैंडर्ड है जो अलो करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इजीली वर्क कर सकते हैं। इट इंश्योर लैंग्वेज इंटरपरेबिलिटी एंड स्मूथ कम्युनिकेशन अक्रॉस द लैंग्वेजेस लाइक सी शार्प, VB.NET एंड C++। तो ये भी हेल्प करता है आपकी कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ कोड लिख के और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और CLI उसमें हेल्प करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा भी रहता है कि बेसिक इंटरव्यूज क्वेश्चन में CLI क्या होता है और उसकी कौन सी की कंपोनेंट्स रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कि CLS क्या होता है, CTS क्या होता है, और कभी कभी मेटा डेटा और असेंबलीज के लिए भी पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से समझना है। तो इसमें की कंपोनेंट्स क्या हैं CLI के, सबसे पहले आता है CTS। CTS में क्या होता है, कॉमन टाइप सिस्टम, मींस इट डिफाइन डेटा टाइप टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस द लैंग्वेजेस। तो इसमें आप एक जो डेटा टाइप्स यूज करते हैं, जैसे कि सी शार्प में आप डेटा टाइप इंटीजर को स्टोर करने के लिए इंट यूज करते हैं, एंड वैसे ही VB.NET में इंटीजर के लिए स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होती है वो INTEGER होती है। ये दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखी जाती है ना, बट इंटरनली क्या होता है कि ये उसके लिए एक सेम डेटा टाइप बना के रखता है, जो कि है system.int32। तो वो अपने को नहीं पता लगता, बट विद द हेल्प ऑफ CTS ये अपने को अलग अलग लैंग्वेजेस में कोड लिखना और उसको समझने में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें सेट ऑफ रूल्स जो अपन ने रख दिए हैं वो सभी के लिए सेम है और वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। देन आता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये भी इंश्योर करता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इजीली इंटरेक्ट कर सको। इंश्योर दैट कोड रिटन इन वन डॉट नेट लैंग्वेजेस कैन वर्क विद अनदर। वही बात होगी कि आप आपका कोड जो एक लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है उसको दूसरी लैंग्वेजेस में भी उसको यूज किया जा सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने सी शार्प की कोई एक क्लास, उसको VB.NET में उस क्लास को यूज किया है, तो CLS बस ये इंश्योर करेगा वहां पे कि कोई ऐसा अनस्पॉटेड फीचर ना हो जो इसकी कंपैटिबिलिटी को ब्रेक करे। तो वो CLS ध्यान रखता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी को ब्रेक ना किया जाए और सबको सेट ऑफ जो रूल्स हैं वो फॉलो करे जाएं। देन आता है मेटा डेटा एंड असेंबली। तो मेटा डेटा एंड असेंबली में क्या होता है कि ये स्टोर करता है स्टोर टाइप इंफॉर्मेशन एंड कोड डिटेल्स। देन आता है असेंबली, कंटेन कंपाइल्ड कोड एंड डिपेंडेंसी फॉर एग्जीक्यूशन। कभी कभी ये भी बेसिक क्वेश्चंस में पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुछ कुछ लाइक 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेटा डेटा बेसिकली होता क्या है। तो ये मेटा डेटा असेंबलीज के अंदर होता है, तो ये कोड की डिटेल्स को पूरा स्टोर करता है। जैसे कि आप कोई भी कोड लिखते हो उसमें कौन सा मेथड है, उसका वेरिएबल का नेम क्या है, मेथड का नेम क्या है, और सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये मेटा डेटा स्टोर करता है, और मेटा डेटा खुद कहाँ पे स्टोर होता है, ये खुद असेंबलीज के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। देन आती हैं असेंबलीज। असेंबलीज क्या है कि ये एक लाइक एक कंपाइल्ड फाइल होती है जिसमें DLL और EXE फाइल्स इसके अंदर आती है बेसिकली। वो भी असेंबलीज होते हैं। DLL क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये भी आप याद रखें कि ये भी पूछा जाता है कि DLL और EXE क्यों यूज की जाते हैं। तो इंटरव्यू में ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि DLL लाइक क्यों यूज की जाती है। तो अगर आपको कोड रीयूज करना है और उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज करना है तो आप DLL यूज करते हो, और अगर आपको एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है देन आप EXE फाइल यूज करते हो, ठीक है। तो असेंबलीज के अंदर भी क्या आता है, MSIL एंड मैनिफेस्ट। तो बेसिकली असेंबलीज क्या होती है, कंपाइल्ड फाइल होती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करती हैं, और वो होती किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट है, CLR की हेल्प से, ठीक है। देन आता है MSIL। MSIL में क्या होता है, कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय द CLR बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द मशीन कोड। तो डायरेक्टली मशीन तो लैंग्वेजेस नहीं समझती ना, इसीलिए CLR क्या करता है, इससे नेटिव कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है। तो MSIL का यूज क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये .NET एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में काम आता है, ताकि अलग अलग सिस्टम पे इसको इजिली रन किया जा सके। एंड देन मैनिफेस्ट क्या होता है, इट स्टोर असेंबली मेटाडेटा। तो इसका क्या मतलब रहता है कि असेंबली की वर्जनिंग और डिपेंडेंसी को ये मैनेज करता है। तो ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है, जो ये देखता है कि असेंबली के अंदर का वर्जन, डिपेंडेंसी और सिक्योरिटी की जो भी डिटेल है वो मैनिफेस्ट में स्टोर होती है।
तो नेक्स्ट थिंग है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ द कोर पार्ट ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट रन्स एंड मैनेज द डॉट नेट एप्लीकेशन बाय हैंडलिंग कोड एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड द सिक्योरिटी। तो बिल्कुल जो CLR है वो अपन ये कह सकते हैं कि वो एक हर्ट की तरह है और एक कोर पार्ट की तरह काम करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ CLR सब कुछ ईजिली हैंडल होता है। जैसे कि कोई भी एरर आता है उसको कैसे हैंडल करना है, कोई भी मेमोरी का इशू रहता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो ये सारा काम विद द हेल्प ऑफ CLR डन होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो ये सबसे पहले हेल्प करता है किसमें कि ये कन्वर्ट करता है जो भी कोड अपना लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मीन्स नेटिव कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है यूजिंग द जिट कंपाइलर। ठीक है, देन आता है मैनेज मेमोरी एंड रिमूव अनयूज ऑब्जेक्ट। तो गार्बेज कलेक्शन बेसिकली क्या काम करता है? ये मेमोरी को मैनेज करता है और जो भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूज में नहीं है अभी, तो ये उसकी स्पेस को रिमूव करता है सो दैट उसको बाकी और ऑब्जेक्ट यूटिलाइज कर सके। एंड इट हैंडल्स एरर्स टू प्रिवेंट द क्रैशेस। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ करता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से क्या होता है कि जो भी अपना एप्लीकेशन है उसमें ट्राई कैच ब्लॉक लगा के आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जो भी एरर आता है उसको हैंडल किया जा सकता है और अपनी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। देन ये भी देखते हैं कि अपने को सिक्योर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइड ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट। मीन्स की डेवलपर को मैन्युअली मेमोरी मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, वो इंटरनली अपने आप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ CLR। तो CLR एक मैनेजर की तरह काम करता है जो डॉट नेट की एप्लीकेशन को स्मूथली और सिक्योरली चलाने में अपनी हेल्प करता है। CLR वर्क कैसे करता है? तो इसके भी अंदर कुछ 7 ऐसे स्टेप्स हैं कह लो जो इसके अंदर होते हैं जो सारा काम हैंडल करते हैं। सबसे पहले आता है क्लास लोडर। सो इट लोड्स द प्रोग्राम जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं उसको लोड करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द इंटरमीडिएट लैंग्वेज। मींस जो भी लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है उसको फिर ये IL में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये किसकी हेल्प से होता है? क्लास लोडर की हेल्प से। देन होता है मेमोरी मैनेजर। तो ये क्या करता है? इट्स एलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट एंड द वेरिएबल्स इन द एप्लीकेशन। तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है? ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको मेमोरी लाइक चाहिए तो ये उसको एलोकेट करने में काम आता है और वेरिएबल को भी मेमोरी एलोकेट करने में ये काम आता है। थर्ड स्टेप जिट मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये कन्वर्ट करता है जो अपना इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है उसको मशीन कोड में। क्योंकि नेटिव कोड मतलब मशीन कोड ही सिर्फ अपना कंप्यूटर समझ पाता है, इसीलिए उसको IL को मशीन कोड में कन्वर्ट कर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिट कंपाइलर। तो ये भी इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि जिट कंपाइलर का यूज क्या होता है। ठीक है, देन आता है थ्रेड मैनेजर। थ्रेड मैनेजर हैंडल्स मल्टीपल टास्क रनिंग इन पैरेलल। तो ये मल्टीपल टास्क मतलब एक साथ रन होते रहते हैं और ये किसकी हेल्प से होते हैं? थ्रेड मैनेजर की हेल्प से होते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट आते हैं गार्बेज कलेक्टर। तो फ्री अप मेमोरी बाय रिमूविंग एंड अनयूज ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। सो इसमें क्या रहता है कि वही जो अपनी मेमोरी ऑलरेडी यूज हो चुकी है उसको अगर उसका अभी कुछ भी यूज में नहीं है तो उसको रिमूव करेगा और उसकी स्पेस को कोई और यूटिलाइज करेगा। देन एक्सेप्शन मैनेजर तो ये डिटेक्ट करेगा और हैंडल करेगा कि रन टाइम पे अगर कोई भी एरर आता है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए सो दैट अपनी एप्लीकेशन क्रैश ना हो सके। देन लास्ट थिंग इज सिक्योरिटी मैनेजर। सो इट एंश्योर द एप्लीकेशन रन सिक्योरली बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसे कोई भी सिर्फ वो यूज कर सके जिनके पास एक्सेस है। अगर उसके बाद कोई और इसको यूज करता है तो सिक्योरिटी मैनेजर लाइक ये सारी चीजें हैंडल करते हैं कि इसको कोई और यूज ना कर सके। जिसके पास सिर्फ एक्सेस है वही इसको यूज कर सकता है। तो मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि क्लास लोडर किस तरह से काम करता है, जैसे कि एक रेसिपी बुक है। ठीक है, रेसिपी बुक में क्या रहता है कि जैसे एक शेफ है पहले वो रेसिपी को पढ़ेगा, है ना? वैसे ही CLR क्या करता है? कोड को लोड करता है और लोड करके वो किस में चेंज करता है? उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन आते हैं मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर को आप ऐसे समझो कि ये क्या करता है? बेसिकली इसका काम रहता है कि मेमोरी को एलोकेट करना, लाइक किसी को एक स्पेस प्रोवाइड करना। तो ऐसे समझो कि ये एक किचन में इंग्रेडिएंट को स्टोर करने के लिए जैसे एक जगह रहती है ना, तो ये वैसे काम करता है। जैसे किचन में हर डिश के लिए हर लाइक अलग अलग इंग्रेडिएंट्स एलोकेट होते हैं ना, लाइक उसके लिए हर इंग्रेडिएंट के लिए अलग अलग स्पेस दी जाती है। वैसे ही CLR क्या करता होता है?
वो ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट उनको करता है, ठीक है, मतलब उनको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। देन जिट कंपाइलर को आप ऐसे समझो कि जैसे कि शेफ है, शेफ की भी तो कोई ना कोई रेसिपी रहती है, बट उसको फाइनल डिश में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो जिट कंपाइलर की हेल्प से होता है। तो शेफ क्या करता है, जस्ट सिंपल स्टेप बाय स्टेप लाइक वो रूल्स फॉलो करता रहेगा कि कैसे डिश को प्रिपेयर करना है। वैसे ही सीएलआर क्या करता है, आपके आईएल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है सो दैट आपका कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। देन आता है थ्रेड मैनेजर। तो अभी इसको ऐसे समझो कि जैसे मल्टीपल डिशेस को अपन ने एक साथ बनाना है, तो अभी एक रेस्टोरेंट में अगर अलग अलग शेफ हैं तो वो एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स को हैंडल कर सकते हैं ना। और वैसे ही यहाँ पे थ्रेड मैनेजर क्या काम करता है कि जो सीएलआर है उसमें मल्टीपल टास्क अगर उसके पास आ जाते हैं तो उसको एक साथ कैसे हैंडल करना है वो थ्रेड मैनेजर विद द हेल्प ऑफ सीएलआर करता है, ठीक है। देन आता है गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर को आप ऐसे समझो कि अभी आपने खाना खा लिया है तो आपकी प्लेट्स बिल्कुल यूज हो चुकी हैं, और अभी कोई नया कस्टमर अगर आएगा तो उसको भी तो चाहिए ना कि वो सीट पे बैठे और खाना खा सके। तो वैसे ही वो क्या करेगा, जो अपनी जो यूज हो चुकी है प्लेट उसको रिमूव करेगा सो दैट वहां पे नया कस्टमर आ सके। वैसे ही गार्बेज कलेक्टर काम करता है। देन आता है एक्सेप्शन मैनेजर। तो अभी देखो, अभी तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो कभी ना कभी कोई काम करते हुए कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, उसको हैंडल करने के लिए भी तो एक्सेप्शन मैनेजर होता है ना। जैसे कि अगर तुमने खाना बनाया और कभी कभी तुम्हारा खाना जल जाए और कभी कभी सोल्ट ज़्यादा डल जाए, तो अभी उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए मैनेजर रहता है। वैसे ही सीएलआर अपने को एक्सेप्शन मैनेजर प्रोवाइड करता है जिसमें वो डिटेक्ट करता है अगर कोई भी एरर आता है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए सो दैट अपनी एप्लीकेशन क्रैश होने से बच जाए। और लास्ट थिंग क्या होता है कि किचन में सिर्फ जैसे स्टाफ के मेंबर ही अलाउड होते हैं तो बाहर से कोई बंदा नहीं जा सकता। वैसे ही ये इंश्योर करते हैं कि जिसके पास एक्सेस है सिर्फ वही एप्लीकेशन को रन कर सकता है। तो ये किसके हेल्प से होता है, सिक्योरिटी मैनेजर की हेल्प से। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सीएलआर जो है वो एक स्मार्ट किचन मैनेजर की तरह काम करता है, जो ये देखता है कि सारा कुछ इजीली मैनेज हो जाए। मेमोरी और एरर्स को कैसे हैंडल करना है वो अपने को बताता है। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और डेवलपर को जो सिर्फ कोडिंग पे फोकस करने की जरूरत होती है, बाकी सब सीएलआर खुद संभाल लेता है। अपने पास डॉट नेट कोर। तो डॉट नेट कोर इट इज ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट रन्स ऑन विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में बस एक मेन यही डिफरेंस सबसे पहला ये है कि ये ओपन सोर्स है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क था वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, बट ये ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, जैसे कि विंडोज पे, मैक पे और लिनक्स पे। तो इसका करंट वर्जन क्या है जो यूज अभी आने वाला है फेब 2025 में, और जो आ चुका है तो वो क्या कौन सा है, डॉट नेट 9.0, ठीक है। तो इसका कहाँ का यूज होता है, वेब एप्स बनाने में, माइक्रो सर्विसेज में, क्लाउड्स ऐप में, आईओटी एंड एआई के काम में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये फास्ट एंड लाइट वेट है। और फास्ट एंड लाइट वेट है मतलब कि ये हाई परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप कोई भी काम इजी वे में और अच्छे से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट नेट कोर, ठीक है। देन आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो इट वर्क्स ऑन ऑल द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज, लिनक्स, मैक जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन होता है, ठीक है। देन आता है मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल। तो इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड कंपोनेंट जो अपने को चाहिए सिर्फ वही इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, बाकी नहीं नीड पड़ती, ठीक है। देन मॉडर्न टेक सपोर्ट में ये और किन किन चीज़ों में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डॉकर में, कुबरनेटिव्स में और माइक्रो सर्विसेज में, ठीक है। और लास्ट एडवांटेज क्या है इसकी, सेल्फ कंटेंट डिप्लॉयमेंट, नो डॉट नेट इंस्टॉलेशन नीडेड। तो इसमें डॉट नेट कोर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एप्लीकेशन इसमें रन हो सकती है। तो ये डॉट नेट कोर का आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है, सबसे पहले लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया जाता है। फिर आता है सीएलएस, वही कि ये इंश्योर करता है कि क्रॉस लैंग्वेजेस की जो कंपैटिबिलिटी को मतलब बना के रखे। लाइक
वैसे ही सेट ऑफ रूल्स इसमें भी डिफाइंड होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, सो दैट कि अलग अलग लैंग्वेजेस में इजीली काम किया जा सके और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि एप्लीकेशन, इसमें भी आप उसमें आप ASP.NET की एप्लीकेशन बनाते थे, इसमें आप कोर में भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, इवन तुमको माइक्रो सर्विसेज पे और क्लाउड पे भी काम करना है तब भी तुम विद द हेल्प ऑफ .NET कोर के साथ कर सकते हो। देन उसमें आप AD.NET यूज करते थे डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे आज के टाइम पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज किया जाता है, जिसमें वो डाटाबेस कनेक्टिविटी मतलब उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है, और ORM को यूज करते हैं। ORM बेसिकली क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है, जो डाटाबेस को किसी के साथ भी इजी इंटरेक्शन करने के लिए काम आता है। ठीक है, देन आता है कोर CLR, तो ये भी एग्जीक्यूट क्या और मैनेज कोड करता है, तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका काम भी वही सेम ही रहता है कि इसने सारा कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कोड को मैनेज करना, वो इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, तो ये सारा कुछ CLR करता है। देन आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, जो कि .NET फ्रेमवर्क में नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ विंडोज पे काम किया जाता था, मतलब वो सिर्फ रन होता था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, बट यहाँ पे ये मैक, लिनक्स और विंडोज सब पे रन होता है, तो ये इसका आर्किटेक्ट है। इसमें पढ़ रहे हैं .NET फ्रेमवर्क एंड .NET कोर में डिफरेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, सबसे पहली चीज जो तुमसे पूछी जाती है वो यही होता है कि .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर में डिफरेंस क्या है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि आप बहुत सारे डिफरेंसेस याद नहीं रखते, बट मैं यहाँ पे आपको अच्छे से उसको याद करवाऊंगी, सो दैट कभी भी आपका इंटरव्यू हो या लाइक एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको देना हो एग्जाम, तो आपको ये भूल लेना। तो सबसे पहले ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और .NET फ्रेमवर्क क्या है, स्लोअर है, और जो .NET कोर है ये फास्टर एंड लाइट वेट विथ गुड ऑप्टिमाइजेशन है। तो इसका बेसिकली क्या रहता है कि .NET फ्रेमवर्क जो है उसमें पुराने कंपोनेंट होने के कारण उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो रहती है। ठीक है, और .NET कोर में क्या रहता है कि ये अच्छी ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड अपने को प्रोवाइड करता है, और .NET फ्रेमवर्क में इट रिक्वायर फुल इंस्टॉलेशन, तो मतलब इसमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट .NET कोर अपने को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सेल्फ कंटेंट डिप्लॉयमेंट रन्स विदाउट इंस्टॉलेशन, तो मतलब बिना इंस्टॉल किए भी हम इसको चला सकते हैं। देन ये मोनोलिथिक होता है .NET फ्रेमवर्क, बिकॉज इट इज टाइटली कपल्ड मीन्स कि इसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल होता है .NET कोर, एंड इंस्टॉल ओनली नीडेड कंपोनेंट, तो इसमें क्या रहता है कि जो अपने को रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उसको ही सिर्फ इंस्टॉल करो, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको रन कर सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क क्या है, पार्शली ओपन सोर्स है। ठीक है, इसमें कुछ ही लाइक पार्ट्स हैं जो ओपन सोर्स हैं, और इसमें फुली ओपन सोर्स और कम्युनिटी ड्राइवन की फैसिलिटी भी ये अपने को प्रोवाइड करता है .NET कोर। देन .NET फ्रेमवर्क जो है वो माइक्रो सर्विसेज की मतलब ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये उसके लिए बेस्ट नहीं है, बट .NET कोर बिल्कुल बेस्ट सूटेड है अगर आपको क्लाउड एप्स पे और माइक्रो सर्विसेज के साथ काम करना है। तो नो मेजर अपडेट्स .NET फ्रेमवर्क में, क्योंकि ये अब लेगेंसी बन चुका है, तो नए अपडेट इसमें अभी आते नहीं है। बट .NET कोर क्या है, एक्टिवली डेवलप्ड विद कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, तो इसमें रेगुलर अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स अपने को देखने को मिलते रहते हैं। तो जो .NET कोर है वो मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए बेस्ट चॉइस है, स्पेशली जब अपने को परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, स्पीड फास्ट चाहिए, और क्रॉस प्लेटफॉर्म की कंपैटिबिलिटी चाहिए, और माइक्रो सर्विसेज के साथ काम करने की नीड हो, तब आप .NET कोर को यूज करते हैं। गाइस, इस सीरीज की स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन ने .NET फ्रेमवर्क और .NEट कोर के बारे में अब तक अच्छे से पढ़ लिया है, तो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक आने के लिए, एंड होप यू गाइज लाइक माय वे ऑफ टीचिंग। तो मेरा एम ये है कि मैं आपको .NET इतना आसानी से समझाऊं, और ये आपको इतना इजी लगे कि आप एक ही बार में समझ लें चीजें और भूल ना पाए, इसलिए मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल को यूज करके आपकी कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ, सो दैट आप इजीली इसको समझें और इसको याद रखें। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है, पहले आप सी शार्प से शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बेसिक से एडवांस तक
कवर करेंगे, और कोडिंग की भी प्रैक्टिस में साथ के साथ आपको करवाती जाऊंगी, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ करवाऊंगी, सो दैट आप उसको कोरिलेट कर सके और इजीली चीज़ों को समझ सके और याद भी कर सके। और मैं आपको इस सीरीज में डॉट नेट में जितने भी इंटरव्यू होते हैं, और उसके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो सारे कवर करवाऊंगी, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो डॉट नेट लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अपना पूरा पूरा एफर्ट करूंगी। तो बस स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहिए और डॉट नेट एक्सपर्ट बनने के सफर में मेरे साथ चलिए। एंड गाइस, इफ यू वांट me to make this video in English as well, just drop a comment and let me know, so that I will create the videos in English as well. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डॉट नेट और सी शार्प की और भी अमेजिंग ऐसी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी, जो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए। और आपका सपोर्ट इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि वही मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जुड़ते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो और हंसते रहो। सो राम राम सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू एवरीवन, टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।